तुझे ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। आप सबों को शुभ संध्या। हैप्पी साबत। हैप्पी साबत। इस पवित्र सभा में आप सबों को स्वागत किए जाते हैं। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें भला चंगा रखे हैं। इस सभा को शुरू करने से पहले मैं बाइबल से एक वचन बोलना चाहूंगी जो मिलता है भजन संहिता 61 का 8, 61 वर्स 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे हम अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इस वचन पर परमेश्वर पिता आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि तूने पूरे सप्ताह भर रक्षा रखवाली किए और सुंदर पवित्र दिन में ले लाए हैं। प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक के साथ हो। आज इस पवित्र सभा में जितने भी सभा में भाग लेंगे, उपस्थित होंगे, तमाम जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम जनों को आशीष से परिपूर्ण कीजिए। और क्या मांगे ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दे सुन और ग्रहण कर। आमीन। मैं और एक बाइबल से एक आयत पढ़ना चाहूंगी जो मिलता है भजन संहिता 96 वर्स 1 में। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। तो आइए हम लोग इस सभा को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे जो सॉन्ग सर्विस रुड़की ग्रुप की ओर से होगी। समय आपका है रुड़की ग्रुप। Okay, good evening and good morning and happy Sabbath to each one of you. We are very privileged to join on the Sabbath day for the song service. If you have your church hymnal, you can turn to book hymn number 286. 286. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all, wonderful words of life. Sinners listen to the loving call, wonderful words of life. All so freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified for
The next song we'll sing 306, Draw Me Nearer. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to the service, Lord, by the power of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of the single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Next song, let's sing 195, Showers of Blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings raining. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Thank you once again. Thank you all for joining us. रुड़की ग्रुप की को मैं धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर सॉन्ग सर्विस के लिए। अब हम लोग ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं अर्जी करूंगी, मिसेस रानी मांडी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। आपने पूरे सप्ताह भर हम लोगों के साथ रहा, हमें जोखिम दुर्घटना मृत्यु से बचाया, हमारे कामों में आशीष दिया। और इस वक्त पिता हम सभी को इस आदत के संध्या के समय में आपने इकट्ठा करने के लिए मौका दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार में है, दुख में है, तकलीफ में है, इसका प्रार्थना करते हैं राजेश के लिए, कमालियल अंकल के लिए और डॉक्टर महबूला उनके पिताजी के लिए, और जिस समय हम नहीं भी ले पा रहे, बीमार में जो दुख में है, तकलीफ में है, पिता इनको आपके हाथ में सोचते हैं और ये हम विश्वास करते हैं कि आप उनके विश्वास के द्वारा उनको चंगाई देते हैं। और हम जानते पिता आप दयालु पिता परमेश्वर है और डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्य के वैद्य है पिता। और धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुतों को अभी ठीक भी किया है और वो लोग आपको धन्यवाद देने सके और गवाही देने सके, प्रार्थना करते। इसी तरह और कितने भी लोग हैं प्रभु के दुख तकलीफ बीमारी में अभी झेल रहे, गुजर रहे हैं, उन लोगों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। उन पर आपके दया रूपी हाथ बनी रहे, उनको आप चंगाई दीजिए ताकि वो लोग आपकी गवाही दे सके। प्रार्थना करते हैं पिता इस वक्त हम सभी कोई वचन मीटिंग में जमा हुए आज के वचन सुनने के लिए पिता, आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे हृदय और आत्मा को हम तैयार कर सके ताकि आपके वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण कर सके और अपने जीवन को उसके अनुसार चलाने सके और दूसरों को भी बताने सके। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम लोग सब कोई दूर दराज से अपने प्रियजन दोस्त मित्र सभी को हम लोग इस मीटिंग के द्वारा जमा हुए हैं और आपकी आशीष को प्राप्त कर सके, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे से जो कार्यक्रम है उसको आपके हाथ में सौंपते पिता, आप हमारे साथ रहिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें समझने के लिए ज्ञान दीजिए ताकि जो भी हमें अभी सीखेंगे और उसमें को हम समझ सके। छोटे बड़े सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रियजनों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, तब पर आपकी दया बनी रहे। और क्या मांगे पिता आपको सब कुछ जानते हैं, जो कुछ दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनने और राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं मिसेस रानी मांडी को प्रार्थना करने के लिए। हम लोग खास सॉन्ग हम लोग सुनेंगे जो कि मिसेस प्रीति एंड क्लाउडिया के द्वारा हम लोग अभी सुनेंगे। Hi, good evening, everyone. Sorry about the delay. A happy Sabbath to everybody. And the song is a last moment me and Coco practice, who will sing. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all thy world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, Savior unto thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul without pleading. How great thou art, how great thou art. And then I think that God his Son of this bearing sent him to die, as God to take him that was cross. My burden that we burden, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul,
my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. एक लाना सबके How great thou art, thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you. अब हम लोग बहुत खुश है कि हमारे बीच में मिस्टर मार्शल किस्कू के द्वारा आज का संदेश सुनेंगे। और हम लोग सब जानते हैं मार्शल, और जो कि अरवाइन एडवेंटिस्ट स्कूल परिसर में रहते हैं। मिस्टर मार्शल किस्कू, समय आपका है, अभी संदेश सुना सकते हैं। आप सबों को स्वागत और सबों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये समय के लिए मुझे दिया गया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को भी, जो मुझे ये दिन दिया गया, ये सबत, ये शाम, सबत के शाम। शुरुआत में हम कि मैं इस शाम में आज का वचन पेश कर सकूं। मैं आप सबको को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। घाटशिला ग्रुप हमारे साथ है। कहानी कहा गया है, एलन वाइट के बारे एक छोटी सी कहानी कहा गया है। ये समय है जब एलन वाइट अपनी काम बस शुरू कर रहे थे। उस समय उनका शुरुआती दिन था। तो वो एक समय पे ऐसा था कि वे न्यूजीलैंड गए थे। आप जानते हैं न्यूजीलैंड साउथ पैसिफिक एक छोटा सा द्वीप है, देश है। वहां पर वो गई थी और वहां पर प्रचार करने गई थी, और कुछ दिनों का ऐसा कुछ सीरीज था, मीटिंग था, जिसे वो कंडक्ट कर रही थी। तो जब वो खत्म की और ये मीटिंग, तो एक न्यूली बैप्टाइज्ड एडवेंटिस्ट मेंबर आए, एक महिला आई, एक स्त्री आई उनके पास, और वो उन्होंने एलन वाइट को इनवाइट किया उनके घर पे कि आप हमारे घर पे आइए, कुछ समय के लिए आप रहिए हमारे साथ, और जब तक आप वापस आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तब तक आप हमारे साथ रहिए। तो उन्होंने वो महिला ने इनवाइट करके एलन वाइट को बुलाया। जगह का नाम था पैरामेटा बे, न्यूजीलैंड का एक जगह है पैरामेटा बे, वहां पर उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो जब वो महिला जब इनवाइट करके वो अपने घर वापस लौटी, तो वापस लौटते समय जब वो अपने घर पहुंची, तो घर में उसने अपने मम्मी को बताया कि माँ, आज मैंने एलन वाइट को इनवाइट किया है और कुछ दिनों में एलन वाइट हमारे घर पे आएंगे, हमारे साथ रहेंगी। तो जब उनकी माँ सुनी कि एलन वाइट हमारे घर पे आने वाली है, तो
वो बहुत शॉक में थे और थोड़े सरप्राइज भी थे और वे थोड़े अनप्रिपेयर्ड भी थे कि एलन व्हाइट हमारे घर में आने वाली है। तो उन्होंने उनसे कहा, वो महिला से, कि हम तो अभी जस्ट एडवेंटिस्ट में कन्वर्शन हुए हैं, जस्ट अभी हम बपतिस्मा लिए हैं और हमारा रहने का तौर तरीका अभी भी वैसे ही है। अभी तो हम जस्ट हम बदल रहे हैं अपने रहने का तरीका, खाने का तरीका, जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, हम बस अभी बस चेंज हो रहा है थोड़ा। तो अभी अगर एलन व्हाइट आएगी हमारे घर में और देखेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ये चीज। पर ये चीज तो बोल चुका, और उनके घर में परिवार में बहुत ऐसे मेंबर्स भी थे जो लोग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट भी नहीं थे, दूसरे चर्च के मेंबर थे। तो एलन व्हाइट को ये देख करके अच्छा नहीं लगेगा। उनकी माँ ने कहा, वो महिला की माँ ने कहा। कुछ दिन गुजर गए, ये इनविटेशन तो मिल चुका था और एलन व्हाइट कुछ दिन बाद आई। दोपहर का समय था, वो ट्रेन से जब ये वापस आई उस जगह पे पैरामेटा बे में, जब वो आई तो वो महिला ने उनको इनवाइट किया उनके घर पे और एक फार्म उनको दिया, छोटा सा फार्म बे का सामने उनको रहने को दिया और वे वहां रह रही थी। तो जैसे वे पहुंची उस घर पे, इतना वो थक चुकी थी वो मीटिंग अटेंड करते करते कि वे तुरंत सो गए। वो आई, ड्रेस चेंज की और वो तुरंत सो गए। वो घर के परिवार के मेंबर्स जितने भी थे उन लोग से भी नहीं मिली, वो सो गए। तो जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब वो उठी सुबह 4 बजे, उनको रात को एक विजन दिखाया गया उस परिवार वालों के बारे में। तो परिवार में तो जब वो जो विजन वो देखी थी, वो तुरंत अपना नोटबुक निकली, अपने आप को ड्रेस की और तुरंत वो बैठ करके वो लिखने चालू कर दी। लिखते लिखते हुए वो एक चिट्ठी लिखी उस माँ के लिए, वो महिला की माँ के लिए, उसको एड्रेस करते हुए लिखी कि वो सपना में, वो विजन में, वो दर्शन में यही देखी कि कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे हैं और गैम्बलिंग कर रहे हैं। और उस घर पे जहां पर वो लोग खेल रहे हैं, कुछ औरतें भी हैं और वे लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ बोलने नहीं सक रहे, और जो लोग खेल रहे वो लोगों को ऑर्डर दे रहे कि ये सामान लेके आओ हमारे लिए, ये चीज लेकर आओ। तो एलन व्हाइट को ये जगह बहुत ही खराब लगा। तो उन्होंने वो एंजल को पूछा, उसके साथ जो गाइड कर रहा था उनको, उन्होंने उनको पूछा कि ये विजन का क्या मतलब है और जो ये सीन दिखाया गया है मुझे, इसका क्या मतलब है। तो एलन ने बोला कि मेरा पीछा करो। तो और एक जगह वो एंजल ने एलन व्हाइट को लेके गया दर्शन में, और वहां पर वो देख रहे थे वही सेम लोग थे और वे लोग शराब और अल्कोहलिक ड्रिंक्स को कंज्यूम कर रहे थे। तो एलन व्हाइट को उनको बहुत ही खराब लगा और वे जिस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत ही घिनौना तरीका से वो बात कर रहे थे, बहुत ही शब्दों का उपयोग यूज हो रहा था, बहुत ही गंदा शब्द का उपयोग हो रहा था। तो एलन व्हाइट ने देखा कि ये चीज बहुत ही डिप्रेसिंग है और ये जगह एकदम अपलिफ्टिंग एक युवाओं के लिए, फॉर अ यूथ इट इज नॉट अ प्लेस टू बी देयर। एलन व्हाइट ने और एक दर्शन देखा कि उन्होंने एक यंग मैन के पास गया और उन्हें वो एंजल ने शोल्डर, एक कंधे पे ऐसा करके उनका रखा, और वो जब वो देखा कि वो आदमी वो घर का मालिक था, तो जब वो देखा एलन व्हाइट तुरंत उसको रिकॉग्नाइज की और वो बताई कि जो तुम सब कर रहे हो वो चीज गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। और जो एंजल जो गाइड था एलन व्हाइट का उस समय पे वो दर्शन में, उन्होंने बताया कि जो
कर रहे हो, तुम लोग कार्ड प्लेइंग, जुआ खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो और शराब पी रहे हो, ये इससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। एलन वाइट कुछ दिनों के लिए ही उस जगह पर ही थी, रहने वाली थी, उस जगह पर रहने वाली थी, पैरामीटा बे में ही, पर किसी कारणवश बहुत बारिश होने के कारण एलन वाइट को वहां पर रुकना पड़ा। और क्योंकि रेलवे ट्रैक्स में कादो और कीचड़ और बहुत प्रॉब्लम्स आ गया था, तो ट्रेन आ जा नहीं पा रहा था, तो उनको एक्स्ट्रा 10 दिन उनको रुकना पड़ा उस पैरामीटा बे पे। तो उस 10 दिन का उन्होंने बहुत भरपूर उपयोग किया, उस परिवार को उन्होंने सच्चाई बताई और उन्होंने उनको हेल्प किया। कि जो लोग इस धंधे पे थे, उस एडिक्शन में थे, उन लोगों को समझाया और वे लोग समझे और अपने 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 आप को, अपने चरित्र को, जो कैरेक्टर थे अपने, उनको उन्होंने बदला। और अभी के समय अगर हम देखते हैं कि जो परिवार उस दिन अपनाया, अभी के उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अभी भी वो लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा करने में और परमेश्वर का वचन फैलाने में अभी भी वो लोग न्यूजीलैंड और अन्य देश में वो लोग भाग ले रहे हैं। ये छोटी सी कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी हमारा बस चालू ही हुआ है, हम दूसरे कहानी पे आगे बढ़ते हैं और मैं इजाजत चाहूंगा, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। फेसिंग योर जाइंट्स, अपने दिग्गजों का सामना। हम ये एक नॉर्मल छोटा सा टॉपिक है, पर हमारे लिए एक ऐसा टॉपिक है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे बीच में हम देख सकते हैं कि हमारे बीच में ढेर सारे युवा व्यक्ति अभी प्रेजेंट है। मैं देख सकता हूँ घाटशिला में बच्चों को देख सकता हूँ और प्रीति दीदी के पास देख सकता हूँ मैं, बैठी है हमारे साथ, और कैमरा में और किसको मैं देख सकता हूँ, सामी पैमी को भी मैं देखा था। और तो हमारे लिए एक छोटी सी सीख रहेगी। हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये साल था आपका 11th सेंचुरी BC का था और मेमोरी वर्स हमारा लिया गया है पहला सामुएल 17:3 से, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। And the Philistines stood on the mountain on one side and Israel stood on the mountain on the other side, and there was a valley between them. फिलिस्ती एक पहाड़ पर थे और इजराइल दूसरी पर, घाटी इन दोनों पहाड़ियों के बीच में थी। हम देख सकते हैं और हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये कहानी किसके बारे है। क्या कोई गेस कर सकता है? डेविड एंड गोलियत। वेरी गुड, ये कहानी है डेविड और गोलियत की। आप सही पकड़े, कहानी है डेविड और गोलियत की। हम आगे बढ़ के अपने वचन में और हम देखते हैं कि डेविड कैसा व्यक्ति था। जब मैं रिसर्च कर रहा था ये कहानी के ऊपर, जब मैं बोलूंगा तो मैं देख रहा था कि डेविड बस 15 साल से 19 साल का ही लड़का था, बहुत ही छोटा लड़का। हमारे बीच में हॉस्टल में ढेर सारे लड़के हैं 15-20 के, 15 से 19 साल के बीच में। बस डेविड आपकी ही जैसे ही उम्र का लड़का था और वो प्रोफेशन से एक शेफर्ड था, भेड़ बकरी वो चराता था। अगर हम आगे पढ़ते हैं अपने कहानी में तो ऐसा लिखा गया है, सॉरी मैं ये चीज मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। एंड देयर वेंट आउट अ कंपेनियन, oh sorry, and there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits
and a span, and he had a helmet of brass upon his head, and was armed with a coat of mail, and a weight of a coat of 5,000 shekels of brass, and he had a greave of brass upon his legs, and target of brass between his shoulders, and the staff of spear was like a weaver's beam, and his spears had weight 600 shekels of iron, and one bearing a shield went before him. तो ये समय देख सकते हैं फिलिस्ती और फिलिस्ती और इजराइल के बीच में एक टेंशन। तो इस समय देख सकते हैं कि जब इजराइल और फिलिस्ती जंग के लिए तैयार हो रहे थे और उनके इजराइल के सामने एक ऐसा दानव सा आदमी था जिसका नाम गुलायत था। अगर हम उसका हाइट देखते हैं 6 क्यूबिट, तो मैंने देखा कि वो 11 फीट का था। 11 फीट इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। एक खंबा की तरह हम एक इमेजिन कर सकते हैं, एक जिससे करंट पास होता है, एक उसकी तरह था गुलायत। 11 फीट और 11.5 फीट ऑलमोस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं। और बहुत ही इजराइल के लिए तो वो लोग तो डर चुके थे कि वो लोग कैसे इस दानव से वो लोग लड़ेंगे। और ये आदमी, ये गुलायत जो था, ये लोग को चैलेंज करता था, चुनौती देता था कि and he stood and cried out unto the Israel and said unto them, why are ye out and set out by battle of array? Am I not a Philistine, and ye servants of Saul? Choose a man for you and let him come down to me. तो वो चैलेंज करता था कि तुम आदमियों को भेजो और मेरे साथ लड़ो तुम लोग। पर एक कंडीशन था कि यदि वो व्यक्ति मुझे मार डालता है तो हम फिलिस्ती तुम्हारे दास बनेंगे, इजराइल के दास बनेंगे। एक गोलियत ने एक कंडीशन रखा था कि अगर फिलिस्ती कोई भी गोलायत को अगर मार देता है तो फिलिस्ती इजराइल का दास बनेगा, परंतु यदि फिलिस्ती जीत जाते हैं तो इजराइल को दास बनना पड़ेगा फिलिस्तियों का। तो ये चीज सुन करके सब कोई डर चुके थे। सौल राजा भी डर चुका था, वो भी कुछ नहीं कर रहा था। हम पहला सामुएल 17 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 17 वर्स 33 में कहता है कि साउल ने उत्तर दिया दाऊद को कि तुम नहीं जा सकते और इस फिलिस्ती गोलियत को नहीं लड़ सकते, क्योंकि तुम सैनिक भी नहीं हो, तुम अभी बच्चे हो, और गोलियत जब बच्चा था तब से वो युद्ध कर रहा है। सौल ने डेविड को कहा ये चीज, पर उससे पहले हम देखते हैं कि डेविड कैसा आदमी था, क्या करता था। उसका प्रोफेशन वो भेड़ बकरी को चराता था, फिर भी वो अपने काम को ईमानदारी से करता था। वो बाइबल कहती है, पहला सामुएल में ही कहती है कि जब एक बाघ, एक शेर या फिर एक भालू अगर आकर के डेविड का भेड़ों को अगर लेके भाग भी जाता था, तो डेविड उस भालू और शेर के पीछे जाता और उनको खोज निकालता और उनसे लड़ता और उसके मुंह से उस भेड़ को वो निकाल के आता। ऐसा साहस था डेविड का। डेविड एक आम लड़का था, बहुत ही हमारे जैसा एक नॉर्मल लड़का था, 15 साल का लड़का के जैसा था जैसे। पर परमेश्वर ने उनको चुना था। जिस तरह से वो बड़ा हुआ था, जिस भक्ति में वो बड़ा हुआ था, परमेश्वर को मानते हुए बड़ा हुआ था, परमेश्वर ने भरपूर उसको आशीष दिया था और परमेश्वर उनको चुन के रखा था किसी काम के लिए। हम आगे बढ़ते हैं कि हम आगे देखते हैं कि जब डेविड के पापा ने
उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम जाओ, देख कर आओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अपने भाइयों को मिल कर के आओ। तो वो लेकर गए, कुछ खाने का सामान भी लेकर गए। जब वो डेविड पहुंचा वहां पर, दाऊद पहुंचा वहां पर, तो वो देखा कि एक बड़ा सा व्यक्ति हर शाम को सुबह को निकलता है और चुनौती देता है इजराइल को, और अपशब्द कहता है इजराइल के बारे में, और मजाक उड़ाता, ठट्टा करता है परमेश्वर के लोगों को। इजराइल के लोगों का मजाक उड़ाता है, इजराइल के परमेश्वर का भी मजाक उड़ाता है। दाऊद को ये चीज पसंद नहीं आया। उन्होंने पूछा उन लोगों से, वहां पर जो सैनिक थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनको बताया कि ये चीज ऐसा व्यक्ति है, सब कुछ एक्सप्लेन किया। हमें चुनौती भी दिया गया है कि अगर हम नहीं करते हैं, नहीं जीतते हैं उनसे, तो हमें उनका गुलामी करना पड़ेगा, उनका सेवक बनना पड़ेगा, और हमें मार भी दिया जा सकता है। ऐसा सिचुएशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। और सबको डरे हुए थे उस समय पे। तो दाऊद ने सॉल के बोला कि मुझे सॉल के पास ले चल, और उन्होंने दाऊद ने प्रिपेयर किया कि मैं क्या बोलूंगा राजा के सामने। तो उन्होंने कहा कि दाऊद को जब सॉल राजा के पास लाया गया, तो दाऊद ने कहा कि मैं आपका सर्वेंट, मैं आप इससे क्यों डरते हो? ये तो सिर्फ एक इंसानी है। क्या हमारा का विश्वास में कोई कमी है क्या? क्या हम लड़े इससे? हम क्यों नहीं लड़ सकते इससे? जो विश्वास था सॉल ने उनको माना, उनका विश्वास को देखा, दाऊद का विश्वास को देखा। पर सॉल भी उनको यही चीज कहा 33 में कि तुम अभी भी बच्चे हो, और गोलियत तो जब बच्चा था तब से ये युद्ध करा, तुम कैसे जाओगे और लड़ोगे? तो दाऊद ने वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्स यहाँ पर कहा, यहोवा ने मुझे शेर और रीछ से बचाया है। यहोवा इस फलिस्ती गोलियत से भी मेरा रक्षा करेगा। साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, यहोवा तुम्हारे साथ है। उन्हें दाऊद को परमिशन दिया गया, और यहाँ पर दाऊद ने गोलियत को डांटा। जिस तरह से गोलियत ने इजराइल के परमेश्वर का मजाक उड़ाया था, उसको डांटते हुए कहा कि जो हम जिस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर का सेवा हम करते हैं, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यहाँ पर मेमोरी वर्स में कहा गया, 45 में लिखा गया, देन सेड डेविड टू द फिलिस्टीन, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of Lord of hosts, the God of army of Israel whom thou hast defiled। तो ये इस जगह पे दाऊद ने फिलिस्तियों को कहता है कि तुम आते हो हमारे पास ऐसे लड़ने के लिए, स्पेयर और भाला लेकर आते हो, पर मैं आता हूँ परमेश्वर का नाम लेकर आता हूँ, जो सच्चा परमेश्वर है हमारा। हम आगे देखते हैं अपने कहानी में क्या होता है। जब गोलियत जब गोलियत उसके ऊपर दाऊद के ऊपर हमला करता है, तो गाना भी जानते हैं क्या लेकर तैयार था वो। उसके पास 5 पत्थर था और एक गुलेल था, और वो इसको इस्तेमाल किया, और उसी जगह उन्होंने गोलियत को वहीं ढेर कर दिया, और तुरंत उसका गला काट करके उसे राजा के पास लेकर आया। और जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने प्रशंसा की दाऊद का, और जितने भी फिलिस्ती सिपाही थे, सब देख करके वो भाग गए वहां से। और
जो इज़राइल था उनका पीछा करते हुए सबों को उस जगह पे सबको मार दिया। हम यही देखते हैं कि जिस तरह से दाऊद को अ, दाऊद को बड़ा किया था उसके परिवार ने, परमेश्वर का भय में बड़ा किया था। हम देखते हैं कि उसका जो विश्वास था कि वो एक दानव से जाकर के भिड़ गया। हम अगर इमेजिन करते हैं कि अगर हम जाते हैं किसी के पास, बड़े-बड़े लोगों के पास, हम बहुत डरते हैं कि हम कैसे उनको अप्रोच करेंगे, या फिर किसी के पास जाते हैं, कोई हाई ऑफिशियल लोगों के पास जाते हैं, तो हम अप्रोच करने में डरते हैं कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम अपशब्द ना बोल दें, हम उनको सही चीज हम बोले ताकि उनको तकलीफ ना हो। पर पर उस समय की जब हम देखते हैं कि जब वहां पर एक लड़ाई, एक युद्ध ही एक स्रोत था कि हम एक राज्य को ढेर कर सकते हैं, या फिर अगर दूसरा राज्य हमें हमला करने आता था, हमें जाना पड़ता था। ये लाइफ का सवाल था कि आप लड़ो या मरो। तो दाऊद ना ही एक ट्रेंड सिपाही था, वो सिर्फ एक नॉर्मल सा लड़का था, 15 से 19 साल का लड़का था, ना ही एक ट्रेंड सिपाही था, ना उसको कोई ट्रेनिंग दिया गया था। वो सिर्फ भेड़ बकरियों को चराता था, और तकलीफ आने पर जंगल में अगर उसका शेर चोरी का उसका शेर पकड़ के लेता उसका बकरियों को या फिर भेड़ों को, तो वो उससे लड़ता और उसको मार डालता। परमेश्वर ने दाऊद को प्रिपेयर कर रहा था, उसको तैयार कर रहा था फ्यूचर के लिए। पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट चैप्टर 62 में यह कहता है, द लॉर्ड हैड चोजन डेविड एंड वाज प्रिपेयरिंग हिम फॉर हिज solitary life with his flocks for the work he designed to commit to his trust in after years. वही चैप्टर में कहता है, David had proven himself brave and faithful in the humble office of shepherd, and now God had chosen him to be a captain of his people. Patriarchs and Prophets, chapter 62. और एक पैराग्राफ एलन वाइट कहती है डेविड के बारे में, नॉट विथस्टैंडिंग हिज पोजीशन व्हिच ही वाज टू ऑक्यूपाई, ही क्वाइटली कंटिन्यू टू employment content to wait and development of Lord's plan in his own time and way. As humble and modest as before his anointing, the shepherd boy returned to the hill and watched the guarded his flocks as tenderly as ever. हम देख सकते हैं एलन वाइट जिस तरह से लिखती है दाऊद के बारे में, कि जो भी प्रोफेशन में था डेविड, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। हमारे लिए ये सीख है कि जब हम बड़े होते हैं, स्पेशली युवाओं में, एक अभी भी वे यंग है, अभी भी उनके पास स्ट्रेंथ है, वो अपने आप को वो तैयार कर सकते हैं। इस समय पे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, स्पिरिचुअली डेवलप कर सकते हैं, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, फिजिकली अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि जब हमें समय आए, जब परमेश्वर के लिए काम करने का समय आए, जब भी हमें मैदान में उतरना पड़े, हम कोई बहाना ना दे करके हम उतरे और परमेश्वर के काम के लिए हम आगे बढ़े। दूसरा पैराग्राफ में यह कहता है कि वो बहुत ही साहसी लड़का था, और एक हम्बल आदमी था, एक हम्बल लड़का था, 15 साल का ही लड़का था, पर बहुत हम्बल था। अपने आप को उन्होंने ऐसा तैयार किया था, और परमेश्वर उसको तैयार करने के लिए सहायता कर रहा था। 15 साल का लड़का, अगर हम इमेजिन करते हैं शेर से लड़ना, बहुत ही असंभव चीज है। अभी के समय पर अगर हम सोचते हैं कि 15 साल का लड़का अगर शेर से लड़े, तो शेर ही ऑफ कोर्स जीतेगा, उसको चीर फाड़ देगा। पर दाऊद के पास ऐसा उसका ट्रेनिंग था, जिस तरह से उसको परमेश्वर ने उसको ट्रेन किया था, उसको रखा था, उसको मैदान में उसको ट्रेन किया कि वो भालू शेर कोई भी आए उसके सामने, उसको वो हरा देता।
और एक चीज है कि दाऊद कभी भी हाई पोजीशन के लिए कभी भी वो नहीं मांगा। वो एक सिंपल घर का आदमी था, एक सिंपल आदमी था। उसके पापा भी बहुत सिंपल थे, उसके भाई लोग भी एक रेप्यूटेड पोजीशन में था। वो लोग जस्ट वे लोग एक सिंपल सिपाही थे वे लोग। पर जब दाऊद को ये पोजीशन दिया गया, उसको अनॉइंट किया गया, वो अपने अनॉइंट होने के बाद वो अपने घर वापस आए। घर वापस आने के बाद वो अपना जो रोज का काम रहता है, उसका जो काम था भेड़ बकरी चराना, उसमें वो लग गया। और आ, वो लोगों को देखने चालू कर दिया जैसा वो पहले करता था। और पैशनेट वे से वो सबको देखने चालू किया, अपने भेड़ बकरियों को। डेविड इन हिज ब्यूटी एंड विगर ऑफ पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट में फिर से ये भी कहता है, डेविड इन हिज ब्यूटी एंड विगर ऑफ हिज young manhood was preparing to take high position with the noblest of earth. His talent as precious gift from God were employed to extol the glory of divine giver. दाऊद अपने आप को तैयार कर रहा था जब वो यंग था। हमारे बीच में अभी भी बहुत ही यंग लोग हैं। हम ये अभी शायद से नहीं समझेंगे, पर हम बाद में रियलाइज करेंगे अगर हम अभी अपना समय को इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को और तैयार करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के पास और लेकर आते हैं, तो हम ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आएंगे जहां शैतान हमें गिराने का कोशिश करेंगे, पर हम नहीं गिरेंगे उस समय पे, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ वो मजबूत बना है उस समय के लिए। हम जो अपने आप को सरेंडर किए हैं, जो अपना जो हम समय बिता है परमेश्वर के साथ, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो वेन में नहीं जाएगा। परंतु जब हमें चैलेंजेस आएगा हमारे सामने दुनियादारी में, जब हमें फेस करना पड़ेगा स्ट्रगल्स, तो उस समय हम परमेश्वर के साथ खड़े होकर के उसका चले हुए रास्ते पे हम चलेंगे। एलन वाइट कहती है मैसेजेस टू यंग पीपल में, लेट द यूथ रिमेंबर दैट दे आर टू बिल्ड कैरेक्टर्स फॉर इटर्निटी एंड दैट गॉड रिक्वायर्स देम to do their best. Let those older in experience watch over the young ones, and when they see them tempted, take them aside and pray with them for them. तो ये कहा गया है मैसेजेस टू यंग पीपल में भी कि जब युवा एक लड़का या लड़की बड़ा होता है या बड़ी होती है वो लड़की या लड़का, तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वे अपना बेस्ट दे। और बड़ों को ये सलाह दिया गया है कि उन्हें सहायता करें सही चीज गलत चीज का डिफरेंस समझने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए। और जब वे गिर जाते हैं, जब वे टेम्पटेशन में गिर जाते हैं, उन्हें समझाना है, उन्हें उनके साथ प्रे करना है ताकि वे चीज वे दोबारा ना दोहराए और वे खड़े हो सके परमेश्वर के लिए। और सही समय के लिए जब समय आए तो वे परमेश्वर का काम में आगे बढ़ सके। बाइबल में यह कहता है, पहला तिमोथी 4:12 में कहता है, लेट नो मैन डिस्पाइज द यूथ but be thou an example of believer in word, in conversion, in charity, in spirit, in faith, in purity. तुम अभी युवा हो, इसलिए कोई भी तुझ ना समझे, बल्कि तू अपने बातचीत, चाल चलन, प्रेम, प्रकाशन, अपने विशेष और पवित्र जीवन से अपने विशेष और पवित्र जीवन से वृक्षियों के लिए एक उदाहरण बन जा। पहला तुस्लियों 4:12 में हमें कहता है कि जब हम युवा हैं, हमें एक एग्जाम्पल के तरह बनना है। जहां भी हम जाते हैं, हमें ये सौभाग्य है कि हमें सच्चाई मिली है। तो हम ये सच्चाई का हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं,
क्या हम अपने में ही रखे हैं, अपने कम्युनिटी में ही क्या हम इसको दबा करके रखे, क्या हम ये सच्चाई को दूसरों को भी बता रहे हैं? अपनी बातचीत के कारण, अपने चाल चलन के कारण, जिस तरह से हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरों से प्रेम करते हैं, क्या हमारा ये चीज परमेश्वर को दर्शाता है कि क्या ये दुनिया को दर्शाता है? हमें बहुत ही सावधानी से हमें चलना है और हमें परखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को कि हम किस तरह से लोगों को हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। क्या लोग एक आम इंसान को देख रहे हैं कि एक परमेश्वर के बनाए हुए व्यक्ति को देख रहे हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको देख रहा है, उसको देख रहा है। हमें बहुत ही सावधानी से चलना है और युवाओं के लिए स्पेशली ये कहा गया है कि जब युवा ये चीज करते हैं तो उन्हें बहुत ही सावधानी से उन्हें चलना है। कहीं भी जाता है, कहीं भी चलते हैं, उन्हें बहुत सोच समझ करके कदम लेना है ताकि वे किसी को हर्ट ना करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, किसी को वो नीचा ना दिखाए, परंतु लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए और लोगों को परमेश्वर के बारे बताए। यही हमारा आज का वचन समाप्त होता है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और हम यही चीज सीखते हैं कि हमारे सामने बहुत कुछ आएंगी, स्पेशली युवाओं के सामने जब वे बड़े होते हैं, बहुत ऐसे चीज आएंगी जो हमें गिराने में मजबूर करेंगे। पर हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर ने हमें सच्चाई दिखाई है, हमें सच्चाई में हमें लेकर आए हैं। हमें हताश नहीं होना है। हमारे आसपास बुजुर्ग है, लोग हैं जो हमें सही मार्गदर्शन करने में हमें सहायता करेंगे और हमें मदद करेंगे कि हम सही गलत में अंतर बता सकें। आप सबों को धन्यवाद। इतना सुंदर संदेश सुनाने के लिए भाई मार्शल को धन्यवाद देते हैं कि एलन जी वाइट के दर्शन और गोलियत और दाऊद की कहानी पूरी सरलता से हमें बताए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हमें उदाहरण के साथ हमें बताए कि किस प्रकार से हमें रहना है। आशा करते हैं कि हम सभी इस दर्शन और उदाहरण सुनकर आशीष को ग्रहण किए हैं। अब हम लोग जाएंगे बाइबल क्विज में के लिए। Okay, good evening once again. I'm in the other side and everybody is on the other side, all are separated. And I would like George, yeah, he's already started to share the screen. You see the pin 2192375. 2192375. Okay, I tried to make the quiz as easy as possible. It's a long chapter, 1 to 17. There are so many names, so many numbers, genealogy, son, his son. But I did not go so much into those sons, but some of the main character that we are more familiar. I chose such names, and I hope you all will do good. And see already 9 participants: Chand, Kiran, Pami, Himlai, Abhishek, Jamie, Anand, SJ, Rahul, and more to come. Stella joining, Kushmadi, Jeweler, and Pritam, Rajiv. Good. Big chapter. Next week also will have big chapter till 34, I think, 18 to 34. 19 player, Ram, Pondi, Kenny, Gladwin, BK. 20, still 21, Sam. So wait for a minute, 60 seconds, and I guess we are good to go. Teddy joined. (22) Karan, 23. Few more seconds. 23 and counting.
All right, just 30 seconds more, and we are good to go. Still, we're stuck in 23. I guess this number will be locked. Any more last moment? $24. All right, I guess we'll start. Genesis chapter 1 to chapter 17. Here we go. The first question. What did God call the firmaments? Air, wind, atmosphere, heaven. All right. 17 of us got just 7. See the scoreboard. First 5. Fastest finger, Abhishek, Gladwin, Himlay, Jamie, and Ram. Next question. 20 questions are there. Okay. On which side of Eden did God plant the garden? East, west, north, south. 10 seconds. 2. All right, it is in the east side. See the scoreboard. Gladwin replaces Abhishek, Kenny, Karan, and Jamie. Next question. What was the name of the third river that flowed out of the Eden? Euphrates, Pison, Hiddekel, and Gihon. Okay, the right answer is Hiddekel. And let's see the scoreboard. All right, Abhishek comes up, Jamie, Rahul, Anand, and Gladwin is on top. Next question. Adam called his wife Eve, which meant mother of all things, mother of all being, mother of all living, mother of all children. What is the right one? Okay, it is mother of all living. 9 of you got right. We have Abhishek replacing Gladwin, Rahul, Jamie, Anand. Next question. What was the name of the city that Cain built for his son? Same name of the city and the son. You have Enoch, Enos, Canaan, Irad. The right answer is Enoch. All right. Cain's sons was his son's name was Enoch, and he called the city also Enoch. Scoreboard. All right, Gladwin's on fire. Followed by Abhishek, JB, Rahul, and the chance. Next question. After Methuselah, he lived for 969 years old. Okay, who lived the longest? We know Methuselah lived for 969. After him, who lived the longest? All right, it was Jared. Okay, after Methuselah, it was Jared and followed by Noah. Let's see the score. Okay, Jamie climbs up, Gladwin holds up position on top, Abhishek, Rahul, and Anand. Next question. What was the measurement of the ark in cubits? You can read. I'll not confuse you. Length, breadth, height. All right, the length was 300 cubit, breadth was 50 cubit, and height 30 cubit. 12 of you got majority. Gladwin still holds the position, followed by Abhishek, Rahul, Jamie, and Anand. Next question. How old was Noah when the flood came? Read.
All right, he was 600 years, 2 months, and 17 days. All right, 7 of you got right, and okay, majority of you got it wrong. Gladwin still holding to the position. Abhishek, Rahul is on fire. Anand and Jamie. Next question. The ark rested on Mount Ararat in the dash month on the dash day. 1714, 1715, 1716, or 1717. All right, it was on Ararat on 17th month on the 17th day. 7 of you have got it right. Gladwin is replaced by Abhishek, Rahul, Anand, and Jamie. Next. How many years did Noah live after the flood? 300 years, 350 years, 400, 450. All right, the right answer is 300 years. See the scoreboard. Okay, Pritham is coming on the screen. Abhishek, Gladwin, Rahul, Anand. Next question, 11th, I guess. Who was the father of Canaan? Shem, Ham, Japheth, Cush. Who was the father of Canaan? All right, it was Ham. Okay, Ham was the father of Canaan. See the scoreboard. Okay, Gladwin replaces Abhishek, Rahul, Pritham, and Anand. And Kenny has moved up 5 spaces. Who was the father of Nimrod, the mighty hunter? Cush, Rama, Havilah, or Gomer? Nimrod, the mighty hunter. The right answer is, it was Cush. He was the father of Nimrod. 9 of you got it right. See the scoreboard again. Keep shuffling. Okay, you can see Jamie coming 1 step climbing. Who was the father of Abraham? Salah, Nahor, Serug, or Terah? Father of Abraham. 7 seconds. 5. All right, it was Terah. He was the father of Abraham, Nahor, and Haran. Next question. Scoreboard. Okay, Jamie is on fire. Abhishek, Rahul, and Pritham. Next. Milcah, Nahor's wife, was the daughter of Isaac, Haran, Salah, or Reu. Milcah. Very twisted relationship if you see the Abraham family had. All right, majority of you got it right. 9 of you, Haran. Okay, Pritham, Stella is on the stage, and Jen moves up 4 places. Next question. Pharaoh sent Abraham from Egypt, and Abraham went back to which place? Bethel, Haran, Canaan, or Sichem? The right answer is Bethel. He went back to Bethel. He came from Bethel. His tent was pitched there. Again, he goes back there. All right, next. Gladwin, Jamie is on fire. Abhishek, Pritham, and Stella. Jamie, 5 streaks. Next question. Chedorlaomer was the king of Shinar, Elasar, Elam, Shinab. Chedorlaomer. He was the king of
Shinar, Elam, Elasar, or Shinab? All right, he was the king of Elam. Gladwin is on fire. Anand comes up, Stella goes down. Jamie, Abhishek, Pritam, next. How many trained servants did Abraham take to rescue Lot? 316, 317, 318, or 319? Trained servants. And the answer is 318. Okay, majority of you got it right. Gladwin still reading. Jamie, Abhishek, Rahul, Pritam. Samir moved 5 places. Next question. Thy seed will be stranger in unknown land and will serve them for dash years. 300, 350, 400, 450. How many years they would serve in an unknown land? This was predicted by God to Abraham. All right, and the right answer is 400 years. Scoreboard. Gladwin still hanging on to the top slot. Jamie, Abhishek, Rahul, and Anand. All right, next last, second last. What was the name of the well called where the angel of the Lord met Hagar? Bir Lahai-roi, Beersheba, Beerot, or Berlim? All biblical names, and all starts with Bir. All right, majority of you got it right. It is Bir Lahai-roi. 10 of you. Scoreboard. All right, Gladwin, Jamie, Abhishek, Anand, and Kenny comes up. Next and the last question. How old was Ishmael when Abraham circumcised him? 12 years, 13 years, 14 years, or 15 years? All right, he was 13 years old when Abraham circumcised him. Let's go to the podium. All right, third spot. We have Abhishek. Second spot, we have Jamie. And third spot, we have Gladwin. And we have the runners up. Can we see them? Okay, Anand and Rahul are the runners up. Congratulations to all of you, and all of you study for the next quiz. Bye. आनंद और खुशी के साथ सब बाइबल क्विज खेले। जीजा जी को धन्यवाद देते हैं, इतना सुंदर बाइबल क्विज हम लोगों को खेलने का मौका दिए। अब हम लोग, मैं एक बाइबल से एक आयत पढ़ना चाहूंगी। ये हम लोग पाते हैं साम्स 95 वर्स 1। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, इस वचन पर आशीष दे। तो आइए हम लोग और एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे केनी एंड ग्रुप के द्वारा। तेरा प्राण दे
कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उठाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा सब तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा सब तेरे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा सब तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। केनी, टेडी, शोभा, प्रीतम को इतना सुंदर मधुर गीत गाने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी हम लोग ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान